Hi, welcome back to the channel. So today in this video, I will be sharing my IIM Udaipur interview experience. I had my interview on 9th of March at the campus itself at Udaipur, and our reporting time was 8:30 a.m. But I reached the campus thoda early, so I had the time to look around at the campus and see how is it. And after that, we all were asked to sit in the classroom, and then the registration process start. सो जैसे बाकी कॉलेजेस लाइक बाकी कॉलेजेस के इंटरव्यू में कैसा होता है कि अगर आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करें तो आपका पैनल नंबर फर्स्ट सीक्वेंस नंबर फर्स्ट आता है, बट उदयपुर में ऐसा नहीं था. उन्होंने सब चीज पहले से ही डिसाइड कर रखा था. वी ऑल वेयर सिटिंग एंड देन एक शीट था, उसमें सब चीज पहले से लिखा था, वो पास हुआ. एंड देन वी ऑल हैव टू साइन ऑन दैट शीट लाइक बिसाइड्स आवर नेम. एंड आफ्टर दैट जैसे ही हम सबने साइन करा एंड वन बाय वन वी ऑल वेयर called to like check our that Aadhaar card और जो भी ओरिजिनल आईडी है वो सब चेक हुआ. एंड आफ्टर दैट आई गॉट टू नो डेट माई पैनल नंबर इज 2 एंड सीक्वेंस नंबर इज 5. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा सीक्वेंस नंबर 5 है, क्योंकि मेरे को बहुत पहले जाना भी पसंद नहीं है और लेट भी नहीं. सो 5 वॉज ओके आई गेस. एंड मैंने सोचा कि 5 तक तो थोड़ा पैनल का मूड वूड भी पता चल जाएगा बाकी स्टूडेंट्स से. बट जैसे ही मैं ये सोच रही थी, वन ऑफ द टीचर केम एंड शी सेड कि जिसका भी इंटरव्यू होगा यू ऑल हैव टू जस्ट पैक योर थिंग्स एंड गो, कि किसी दूसरे स्टूडेंट से बात नहीं करना. सो दे वर नॉट अलाउड टू टेल अस कि कैसा इंटरव्यू चल रहा है एंड what kind of question they were asking. So obviously वो प्लान तो फेल हो चुका था. I was called for the interview and I was really nervous. Like मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी and इतना कि it was like visible on my face because आई थिंक मैंने अभी तक वीडियो में बहुत बार मेंशन कर चुका है कि उदयपुर इज वन ऑफ माई बेस्ट कॉल एंड आई वांटेड टू गिव माई 100% टू इट. एंड दैट वाज द रीजन कि मैं इतना ज्यादा नर्वस थी, बट आई हैव टू काम डाउन. एंड मेरे को जैसे भी इंटरव्यू देना था फॉर 15-20 मिनट, वो जितना देर का भी हो. आई वेंट इन साइड द इंटरव्यू रूम. देयर वेर 2 पैनलिस्ट, बोथ वेर मेल. Let's call them P1 and P2. And I entered the room and I greeted them. They told me to sit down. And the P1 told me, introduce yourself or tell me about yourself. And when I heard the question, tell me about yourself, I was really happy because I prepared the answer. And मेरे previous interview में, like in IMT interview, you know कि क्या हुआ था when they didn't ask me. If you didn't get the reference, please watch the previous video. I have made the video about IMT interview experience also. So yeah, they asked me to introduce myself. I had like prepared the answer for it, so I gave it. So while I was giving the answer, tell me about yourself, one of the line was, I also have a YouTube channel. And ऐसे भी नहीं कि ये लाइन आखिरी में था, so ये लाइन फर्स्ट पैरा में ही था मेरे. And while I was saying this, P2 interrupted me and told me कि so you have a YouTube channel, what is the name? And I said कि काम्या अग्रवाल. So he started searching up in his laptop and to be very honest, I felt थोड़ा awkward, but it's okay, मेरे को उतना mind नहीं हुआ. So he started searching my channel and he said कि just काम्या अग्रवाल, no fancy name or some catchy points जिससे तुम्हारा YouTube channel like show हो अलग से. So I said कि no sir. And to be very honest, there is nothing like ऐसे कुछ यूनिक तो नहीं था. So I just didn't exaggerate anything. मैंने बोल दिया कि नहीं है. So फिर उसके बाद he said कि continue and then I completed my answer. Then the first question was asked by P1. He told me if we are calculating GDP by expenditure method, then what all are the aggregates that we use? So I answered the question correctly. आफ्टर दैट ही आस्क मी कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई जो रेगुलेट करती है उसमें कंजम्पशन में डायरेक्टली किसको इफेक्ट होता है. सो आई सेड कि पीपल लाइक अस एंड कंज्यूमर, बट ही डिडंट सीम वेरी सेटिस्फाइड. सो आई लाइक उन्होंने फिर क्रॉस क्वेश्चन करा कि हाउ एंड ऑल. सो आई सेड कि लाइक मैंने फिर पूरा एक्सप्लेन करा कि मॉनेटरी पॉलिसी में 2 मेजर होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड ऑल, रेपो रेट, मैंने सब एक्सप्लेन करा. देन ही वाज लाइक ओके. आफ्टर दैट P2 टोल्ड मी, सो आई सी कि तुमने IMT के बारे में वीडियो बनाया है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सो विल यू मेक वीडियो अबाउट उदयपुर ऑल्सो? सो आई वॉज लाइक yes sir, most probably, and I am making the video right now. So while P2 said this, P1 looked at him and he smiled. I also mentioned in my interview about that I want to work with an FMCG company in the future. So P2 asked me, why do you want to work in an FMCG company?
and I prepared an answer for this also, so I gave it. But then he was like, it is so stagnant, and what will you get if you like sell or be a brand manager of shampoo company or some like soap company. And he was just making it look very negative to be working in an FMCG company. But then I defended it as much as I can. But to be very honest, he was like, they both of them didn't seem very satisfied. एंड ये पॉइंट से मेरा इंटरव्यू थोड़ा बिगड़ने लग गया था, बिकॉज आई थिंक मैंने ये FMCG कंपनी वाला मेंशन करके थोड़ा रॉन्ग स्टेप ले लिया था, एंड इट बैकफायर्ड मी सम हाउ. बिकॉज इसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा कि विच इज योर फेवरेट ब्रांड. सो आई सेड पार्ले, बिकॉज मैंने थोड़ा प्रिपेयर करा था पार्ले के बारे में एंड मुझे फाउंडर वगैरह भी पता था. सो आई जस्ट सेड इट. सो ही वॉज लाइक, सपोज यू आर अ ब्रांड मैनेजर ऑफ पार्ले, सो हाउ विल यू मैनेज इट. क्योंकि व्हेन वी से कि पार्ले द ओनली प्रोडक्ट वी गेट, जो माइंड में आता है वो पार्ले जी है, बट पार्ले के और भी प्रोडक्ट है लाइक मेलोडी एंड ऑल्सो, तुम कैसे करोगी. सो आई वॉज लाइक, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज क्या करोगे, आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दिस. सो आई जस्ट सेड समथिंग एंड मैंने थोड़ा इधर उधर बोला, बट ही वॉज ऑल्सो लाइक ही वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड. देन पीटू आस्क मी कि एक और ब्रांड है क्रैक जैक, एंड सपोज यू आर अ ब्रांड मैनेजर ऑफ क्रैक जैक, सो व्हाट विल यू डू कि पीपल will buy crack jack over Parle G. So while I was answering this question, P1 interrupted me and told me ki what are the consumer target of both the brand, and are they overlapping. So I said ki yes sir, they are overlapping and they are both competition of each other. So he said, what are the differentiating factor of both the company. So I said ki I know I am wrong in this and I may sound very dumb here, but at that point कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. I will be very honest, and they were like थोड़ा smirking and also I was very nervous at that point. So I just answer whatever comes in my mind and I know I am wrong here. So differentiating factor में I just said कि क्रैक जैक थोड़ा ज्यादा शुगरी है and पार्ले जी उतना like पार्ले also have sugar, but in comparison to क्रैक जैक it is less. So then P1 said कि you are a brand manager of क्रैक जैक, so how are you defending Parle G. So I said कि sir, I was answering from the point of view of Parle. So he said कि तो Parle में अगर कम शुगर है, so why will people buy? People will buy क्रैक जैक only. So I said कि yes sir, but sir, people who are health conscious will buy Parle G. So he said कि what about क्रैक जैक. So what will you write if you are a brand manager कि इसमें कम शुगर है तो ये ले लो. एंड ये पार्ले और ये क्रैक जैक वाला में मेरा इतना ज्यादा लंबा देर डिस्कशन चला, लाइक आई थिंक मेरा ओवरऑल इंटरव्यू 20 मिनट समथिंग का था, लाइक 15-20 मिनट का होगा, एंड 5 मिनट तो सिर्फ यही टॉपिक में चला. एंड आई वॉज रियली नर्वस, और मैं बस ऐसे थी कि बस ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए, ये ब्रांड मैनेजर वाला, बिकॉज I'll be very honest, ये पॉइंट में मेरे को नहीं पता कि हाउ टू थिंक लाइक अ ब्रांड मैनेजर. आई जस्ट वांट टू स्टडी अबाउट दैट, बट ये दिमाग मेरे को पहले लगाना था और ये चीज मेरे को इंटरव्यू में बोलना था, बट मैं ये सब चीज वहां नहीं बोली. जैसे ही मैंने लाइक इसमें थोड़ा मैं बहुत ज्यादा फंबल कर रही थी. सो द P2 आस्क मी कि यू कुड हैव द बेटर आंसर वुड बी कि सर आई डोंट नो एंड आई वांट टू स्टडी ऑल ऑफ दिस इन द कॉलेज इटसेल्फ. सो आई सेड कि yes sir, आई एम रियली सॉरी बट आई सीरियसली डोंट नो. सो एंड आई शुड हैव सेड इट, लाइक मैंने ऐसे कुछ बोला. सो ही सेड ओके, and after that we just like he then asked me about economics. So he asked me कि अभी गोल्ड सिल्वर का रेट इतना शूट अप हो रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा है. एंड देन दिस वाज द सेकंड डिजास्टर, क्योंकि इसमें अभी मेरे को आइडिया नहीं था, बट मेरे को सिल्वर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था बट गोल्ड के बारे में नहीं था. सो मैंने सोचा कि लाइक मैं थोड़ा सिल्वर का ही बोल देती हूँ तो टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा. सो मैंने सिल्वर के बारे में मेरे को आइडिया था कि ईवी बूम एंड चाइना के वजह से हो रहा है. सो आई वाज आंसरिंग, देन ही सेड ओके अबाउट दिस, बट देन ही सेड व्हाट अबाउट गोल्ड. एंड मैंने ये भी मेंशन करा कि सिल्वर मतलब थोड़ा 2-3 महीना पहले तो बहुत ही ज्यादा शूटअप था, बट नाउ इट इज काइंड ऑफ स्टेबल. सो ही सेड ओके, ऑल ऑफ दिस इज ओके, बट व्हाट अबाउट गोल्ड. एंड मेरे को गोल्ड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, तो पहले जितना मैसअप हो चुका था. सो आई स्ट्रेट अप सेड कि सर आई हैड नो आइडिया अबाउट गोल्ड. सो ही सेड कि नहीं फिर भी. सो देन आई सेड कि सर मे बी बिकॉज ऑफ चाइना. सो ही सेड चाइना, आर यू श्योर. What about RBI? Don't you think RBI play any role in circulating gold and all? So I think yes, sir. It might, sir. I think it might play a role. I think because so he said कि
व्हाट डू यू थिंक कि कैसे आरबीआई रोल प्ले करता है. And then I said कि sir, I don't know, I don't have idea about gold. Then he again say, just think, you might come up with any of the answer. So I said कि sir, maybe RBI supply gold in the market. I know, I may sound like I am sounding dumb. What about me? I am sounding dumb, but वो पॉइंट में मेरे को ये गोल्ड सिल्वर का, मेरे को गोल्ड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था. मैंने वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि जब मनी डेप्रिशिएट होता है तो आरबीआई उसको कंट्रोल करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सप्लाई करता है. सो मे बी गोल्ड का भी ऐसे कुछ सीन होगा जब उन्होंने बोल दिया कि आरबीआई करता है. सो आई सेड कि सर, आरबीआई सप्लाई गोल्ड एंड उसकी वजह से थोड़ा प्राइस इधर उधर होता है. सो ही सेड कि आरबीआई सप्लाई गोल्ड, आर यू श्योर? एंड आई सेड कि सर, आई हैड नो आइडिया. सो व्हाट डू यू थिंक कि ही सेड द पैनल टू, व्हाट डू यू थिंक कि आरबीआई गोल्ड ले लो करके आरबीआई गोल्ड बेचता है, लाइक ही सेल गोल्ड टू अ सिंगल कंज्यूमर, लाइक ही विल सेल गोल्ड टू यू. एंड ही वाज सेइंग समथिंग लाइक दिस एंड ही वाज स्माइलिंग. एंड वो हंस रहे थे, तब तक तो ठीक था. मेरे को इतनी हंसी आ रही थी. आई वॉज लिटरली लाइक कंट्रोलिंग माई सेल्फ अलॉट एंड बट आई जस्ट वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल एंड आई लाफ्ड देयर एंड आई सेड कि नो सर, आई डोंट थिंक इट इज लाइक दैट एंड आई एम रियली सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया ऑफ दिस. एंड आई जस्ट सेड इट स्ट्रेट अप एंड आई वॉज लाफिंग सो मच एंड ही वॉज ऑल्सो लाफिंग सो मच. एंड आई नो कि हम दोनों हम दोनों को वो मेरे को बहुत डम समझ रहे थे, बट आई कांट हेल्प इट. मेरे को नहीं पता था इसका आंसर. देन ही आस्क्ड मी कि अभी जो वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, एंड उसमें एक ऑयल में क्या इफेक्ट हो रहा है. सो फाइनली अ टॉपिक जो मैंने पढ़ा था. सो आई सेड कि ठीक है, ऑयल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो रहा है एंड जिससे करेंसी भी डेप्रिशिएट हो सकती है इन फ्यूचर अलॉट, अगर ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये वॉर चला. सो ही सेड कि ये ठीक है, लेकिन कितना है ऑयल का प्राइस अभी मेरे को नहीं पता था. एंड आई सेड कि सर, आई डोंट नो. देन ही सेड कि फिर भी गैस. एंड आई सेड कि सर $40, but I was wrong. It is $90. But he didn't say anything at that point. So I said okay. And then he asked me what about inflation. What is inflation? And then I answered it was correct. He was also satisfied. Then he asked me how do we calculate inflation. That I also know कि by CPI and CPI core and then food and fuel inflation ये सब. Then I told him and he was satisfied finally. All of this question was asked by P2 only. Then he asked me कि CRR percent कितना है. So it was 3%. I know. I told him. Then he was like, are you sure it was 3%? And then I said yes sir, it is 3%. And I was very sure क्योंकि मैं इंटरव्यू से पहले ही वो सब रिवाइज कर रही थी. Then he told me कि अभी GDP का बेस ईयर चेंज हुआ है. So what is it? Then it was 2022 to 23 and ये भी मैंने जस्ट इंटरव्यू के पहले पढ़ा था. So I said it and he was like, he just asked me twice कि are you sure it is 2022? And I was like yes sir. Then he said okay. फिर उन्होंने पूछा कि बेस ईयर क्यों चेंज करते हैं. सो मैंने बताया कि इट वाज लाइक 2012 जो पहले बेस ईयर थे एंड अब तक में बहुत सारे चेंजेस आ गए हमारे इकोनॉमी में. सो उसको स्टेबलाइज करने के लिए एंड उसको वो सबको कैलकुलेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल पहले जोमेटो एंड ये सब, एंड आई गिव दिस एग्जाम्पल लिटरली कि पहले जोमेटो, ब्लिंकिट ये सब नहीं था एंड अब ये सब है, तो जिसकी वजह से कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. सो दिस इज द रीजन. Then he said कि what about COVID? So I said कि yes sir, COVID is also one of the reason and this is also the reason what I stated. Then he asked me what current news do you follow? So I said कि sir, I follow news about economics. This was also asked by P2 by the way. Then he told me कि tell me some current news of India except about economics. सो आई मैंने सोचा था कि अगर पूछेंगे तो मैं बजट और ये सब के बारे में बोल दूंगी, बट ही सेड एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स. सो आई सेड अबाउट मनरेगा एंड आई सेड कि मनरेगा का अभी नाम चेंज हो गया VBG रामजी. मैंने वहां पे तो ये बोला कि VB रामजी एक्ट हो गया. देन ही सेड कि इट्स नॉट VB रामजी, इट्स VBG रामजी. एंड आई सेड कि यस सर. एंड देन मैंने एक्सप्लेन करा कि पहले 100 डेज का था, अब 125 डेज का हो गया. पहले डिमांड ड्रिवन था, अब सप्लाई ड्रिवन हो गया. एंड ये जो लाइन मैंने बोला कि पहले डिमांड ड्रिवन था, अब सप्लाई ड्रिवन हो गया, यहाँ पे फिर एक मैसअप हो चुका था क्योंकि बिकॉज मैंने पढ़ा था कि अब सप्लाई ड्रिवन है एंड अब एक सर्टेन बजट है VBG रामजी को लेके. सो मैंने इसके बारे में पढ़ा था. सो आई न्यू अबाउट इट. सो दैट्स व्हाई आई सेड इट. बट देन ही सेड कि अब तुमको क्या लगता है पहले कोई बजट नहीं था? सो आई सेड कि नो सर, ऐसे कुछ सर्टेन बजट नहीं था.
तो उन्होंने बोला कि तो जितना भी पैसा जो जाता था वो किसके अकाउंट से जाता था, कहाँ से बैलेंस जाता था. सो आई सेड कि सर एज फार एज आई नो कि यहीं तक अभी जो बजट अलोकेट हुआ है वही बजट है एंड पहले कुछ इतना बजट नहीं था. So he told me कि are you sure about that, and I said yes. And when I said I am sure about it, so he said कि so जितना भी पहले पैसा जाता था वो किसके अकाउंट से जाता था, कोई तो पे करता होगा ना. So I said कि previously it was borne by central government. I read about it, so I knew. And the ratio was 90:10, and then he said what is the ratio currently. So I said 60:40. So he said okay, and but what is the allocation, who has the 60%. So I said it is central government and 40 is for state. So he said okay, and then finally this topic was also closed. After that they said that's it for the interview and all the best for your future. And I said thank you so much sir, it was a really nice interview. And yeah, that's it. That was my overall interview. Overall, I felt that the vibe of interview was good, and the experience was also really good, because when I was answering the question wrong, like FMCG वाला में मैंने थोड़ा गलत करा था, so they were not grilling while they were questioning me. They were also smiling at that time, so I think that was good. And if you ask about my performance, I think it was average or maybe below average, because जो 3 टॉपिक थे, मनरेगा, FMCG and then the gold silver prize, ये 3 में I was not able to perform really good. But besides that, जो academically था, like GDP rate and GDP का formula and then the exception one, so ये सब को I was able to answer. So I think it was mix of both, क्योंकि मेरे को कुछ आता भी था और कुछ नहीं भी आता था. So I want your opinion that what do you think how my interview went, and if possible please rate my interview out of 10, so I could know that where I'm standing right now. And it will be really good if you also comment about my areas of improvement, so that will be really helpful for me. I think it was not my best. I could perform much better, and especially the current news, उसके बारे में मेरे को थोड़ा और पढ़ना चाहिए था. So I will improve that in my next interview. So my next interview is of IIT Kanpur on 15th of March at Noida. So I will be making video about that also. So make sure you have subscribed to the channel, and that's it for the video. Thank you so much for watching it. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it. Bye bye.